Is the presentation visible to everyone now? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Okay, good afternoon, everyone. Today, again, the fourth unit, which is disorders and health problems of a child. We will be seeing a topic which is somnambulism. It is a topic in your fourth unit over here, somnambulism. What do you mean by somnambulism? आपने कभी सुना है this term somnambulism? Any idea regarding the topic? मैम ये कुछ स्लीप से सोमनाथ रिलेटेड है। हाँ वेरी गुड पुनीत मैम आपने बोला नींद है मैम नींद यस मैम। मैम नींद में चलना हाँ शायद। बिकॉज इमेज देख के पता चल रहा है वेरी गुड नींद में चलना दैट इज सोमनैम्बुलिज्म और एल्स यू जैसे कैन से इंसोम्निया स्लीप तो इसमें वॉकिंग सोमना आता है। नहीं सोमनैम्बुलिज्म मीन्स स्लीप वॉकिंग चलना सोते टाइम सोते में so what is sleep first of all sleep it is a state of rest with nearly cessation of conscious life it is what sleep क्या है it's a state of rest क्यों सोता है कब सो जाता है इंसान जब a particular person is tired of something tired of working tired of the overall 24/7 hour routine so it's a state of rest with nearly cessation of conscious life cessation means what पता है तो प्लीज से यस नहीं पता है तो प्लीज से नो प्लीज डोंट वेस्ट टाइम नो मैम। नो मैम। इफ यू ऑल आर अवेयर सीसेशन नहीं पता सीसेशन मतलब होता है स्टॉपेज तो कॉन्शियस लाइफ जब कोई सोता है तो एकदम जागता हुआ सोता है कि उसको पता रहता है व्हाट इज हैपनिंग अराउंड द सराउंडिंग्स नो सो इट इज द सीजेशन ऑफ कॉन्शियस लाइफ इसमें ये नहीं कहा है कि स्टॉपेज ऑफ लाइफ ओनली इट इज स्टॉपेज यू कैन से ऑफ कॉन्शियस लाइफ अब अनकॉन्शियस माइंड में और अनकॉन्शियस माइंड में हम सोच रहे हैं सो रहे हैं वी आर ड्रीमिंग दैट इज द सीजेशन ऑफ कॉन्शियस लाइफ कॉन्शियस नहीं है सो गए हैं बिना कुछ इधर उधर जाने पिछाने और सो रहे हैं that is a state of rest with nearly cessation of conscious life sleepwalking now somnambulism is also known as sleepwalking in a normal term which is common name is sleepwalking formal name is sleep disorder and medically we call it somnambulism or noctambulism somnambulism is an overall sleep walking noctambulism means रात के ही सिर्फ sleep walking हो रही है sleepwalking definition you can say somnambulism definition sleepwalking is a disorder that occurs when a person walks or does another activity while they are still asleep क्या क्या है स्लीप वॉकिंग और सोमनैम्बुलिज्म इट इज अ डिसऑर्डर दैट अकर्स कब होता है जब भी अ पर्सन वॉक या तो कोई पर्सन सोते के टाइम में चल रहा होता है या कोई भी ऐसी एक्टिविटी कर रहा होगा कोई भी एक्टिविटी बट वो अभी भी सो रहा है इधर चलने लगेगा इधर सिंपली सिटिंग बेड पे से उठ के सिर्फ बेड पे बैठ जा रहा है या फिर डूइंग सम और दी अदर वर्क बट द पर्सन इज इन स्टेट ऑफ sleep only because they're sleeping only that time who does it affect किसको किसको affect करती है first of all most common in children it is very common in children with an age group of 6 to 12 years of age 6 to 12 years of age children belongs to what age group किसके अंदर में आते हैं वो whether they come in preschool age or school age or toddler कौन से एज ग्रुप में आ रहे हैं school age group I'm asking you all only if you'll keep mum कुछ नहीं घुसेगा दिमाग में so usually within the first 6 to 12 years of age 6 to 12 कौन से एज में आते हैं स्कूल गोइंग चिल्ड्रन तो अडल्ट ये कब होगा चिल्ड्रन में कॉमन है फर्स्ट ऑफ ऑल 6 to 12 years of age में देन अडल्ट में कब होगा it is reaction to any drug or else idiosyncratic reaction to drugs या फिर alcohol or any other medical condition may be the positive factor in adults elderly में कब होगा it may be a feature of dementia क्या होता है पुनीत you have any idea regarding this what do you mean by dementia Loss of memory.
मैम मेंटल Whosoever डिसऑर्डर में होता है। says उसको बोलो कि आपका नाम क्या है और फिर बोलो। मैम आकांक्षा। हाँ, say what do you mean by dementia अगर आपको पता है तो। मैम डिमेंशिया एक कंडीशन होती है जिसमें हमारी जो मेमोरी होती है वो लॉस हो जाती है। हाँ, you can say cognitive functioning loss हो जाती है in a means refined form. You can say dementia is what? It is a loss of cognitive functioning. Cognition में क्या क्या आएगा? So thinking capacity खत्म हो जाएगी, answering capacity खत्म हो जाएगी, then rationalizing capacity कम हो जाएगी, और actively what they what you say, if somebody like if a person is there and if a person A is getting scoldings, तो एक person ऐसा होगा who is a normal person, he or she can control कि अभी मैडम है उनके सामने, I don't have to lose my temper or I don't have to lose my emotions, I don't have to cry, तो वो लोग can adjust. But people with dementia they are like वो कभी भी रो देंगे. You have seen elderly को कभी भी they will feel bad, they will start crying, or else they may feel bad or they may not. पर्टिकुलरली अगर डिमेंशिया सुनेंगे आप तो यू विल रिमेंबर कि रिमेंबरिंग कैपेसिटी कम हो गई, भूल भूल जा रहे हैं बार बार, बट इट इज कलेक्टिवली कॉग्निटिव फंक्शनिंग का लॉस है जिसमें रैशनलाइजिंग, थिंकिंग कैपेसिटी और एल्स रिमेंबरिंग कैपेसिटी, ये सारी चीज़ों की भूल भूल जाते हैं. सो दैट विल बी इन एल्डरली. इन चिल्ड्रन, अगर चिल्ड्रन में है तो उसमें क्या क्या सिम्स यू विल सी? फटीग्ड. अगर कोई चाइल्ड इज बीन सफरिंग फ्रॉम सोमनैम्बुलिज्म, फटीग्ड. क्यों? क्योंकि आधे सोने में तो ध्यान ही नहीं, आधे सोने में तो चल रहा है, बिकॉज ऑफ दैट लैक ऑफ स्लीप है. पहले तो लैक ऑफ स्लीप, सो ही नहीं रहे हैं, चलते जा रहे हैं ऐसे ही. दैट इज वाई एंजाइटी इन अडल्ट. अडल्ट को क्या होगा? एंजाइटी हो जाएगा, क्यों मैं ऐसे क्यों कर रहा हूँ, वाई इज इट समथिंग रॉन्ग, इज एम आई मैड, और एल्स अल्कोहल यूज, ड्रग अब्यूज और कोई अदर मेडिकेशन है जिसकी वजह से साइड इफेक्ट हो रही है. तो इन चिल्ड्रन इट कैन बी लाइक दिस. कॉमन साइंस ऑफ स्लीप वॉकिंग. कॉमन साइंस कैसे होंगे? एक मायो क्लिनिक है उसके अकॉर्डिंग, और एल्स यू कैन से WHO ऑल्सो, कि कॉमन साइंस ऑफ स्लीप वॉकिंग आर दे रोम अराउंड द हाउस. क्या साइन एंड सिम्टम रहेंगे? दे रोम अराउंड द हाउस, घर में कहीं भी घूम रहे हैं. दे हैव डिफिकल्टी टू वेक. क्यों? क्योंकि रात में तो दे आर हैविंग स्लीप वॉक, दे आर स्लीप वॉकिंग. सो नेचुरली व्हेन द टाइम इज देयर उठने का, तब उनको डिफिकल्टी लगेगी उठने में, बिकॉज देयर स्लीप इज नॉट कंप्लीटेड, साइकिल ऑफ स्लीप साइकिल इज नॉट कंप्लीटेड. एंगेज इन रूटीन एक्टिविटीज. अब वो कुछ ना कुछ एक्टिविटीज दे विल डू, or else they will be having difficulty in engaging in the routine activities. Why? क्योंकि अब नींद नहीं पूरा हुआ है, वो टाइम में what they will do, they will think कि कैसे भी खत्म हो काम एंड सोने को मिले. So they will be having difficulty in engaging in the routine activities. Talking is also common, although what they say might not make any sense. टॉकिंग इज ऑल्सो कॉमन, बट बात तो करेंगे, कुछ भी तो उनको बोलना है. दे विल डेफिनेटली से वट एवर दे आर. मीन्स इफ ए नॉर्मल कॉन्वर्सेशन इज गोइंग ऑन, ईदर दे विल बी क्वाइट और एल्स अगर बोलेंगे तो दे विल बी लाइक दे विल बी सेइंग समथिंग बट इट विल बी ऑल सेंसलेस, उसका कोई मीनिंग ही नहीं निकलेगा. लेकिन हाँ, वो कुछ बोलना है, दैट इज वाई दे आर सेइंग समथिंग. डायग्नोसिस आप कैसे कर सकते हैं? पहले तो इट इज फ्रीक्वेंट इन आइडेंटिकल ट्विंस. आइडेंटिकल मतलब क्या होती है? पहले तो देन आई विल टेल यू कि आइडेंटिकल ट्विंस क्या है. यू हैव एनी आइडिया कि आइडेंटिकल मतलब क्या होती है? आइडेंटिकल मतलब क्या होती है, और इसकी मेडिकल टर्म में आइडेंटिकल ट्विंस को क्या बोलते हैं? फर्स्ट टू टेल आइडेंटिकल ट्विंस मतलब क्या होती है? आइडेंटिकल मतलब एक जैसा, एक जैसा. ट्विंस, एक जैसा. ट्विंस मतलब इसको मेडिकल प्रोफेशन में बोलते हैं मोनोजाइगोटिक ट्विंस. याद रख दो, ये कहीं पे लिख लेना इफ यू ऑल कैन राइट. आइडेंटिकल ट्विंस को हम क्या बोलते हैं? मोनोजाइगोटिक ट्विंस भी. ऐसा नहीं है कि दो एग फ्यूज हो जाते हैं, इसका होता है एक ही एग होता है लेकिन वो दो में डिवाइड हो जाता है, जिसकी वजह से दो
ट्विंस पैदा होते हैं, आइडेंटिकल मतलब एक जैसे दिखने वाले दो लोग, 10 times more likely to occur if an immediate relative has a history of sleepwalking. अगर immediate relative, अगर it is more common, 10 times more common है उन लोगों में जिनके घर में immediate relative has a history of sleepwalking. Immediate relative can be immediate person, mother, father और grandparents, इन लोगों में से, और एल्स इसके पहले कोई बच्चा था इनका या सिबलिंग कोई है जिसको ऐसा प्रॉब्लम है, तो देर आर चांसेस कि उस दूसरे बच्चे को भी ऐसा हो सकता है. इट इज थॉट द कंडीशन कैन बी इनहेरिटेड. ये ऐसा माना गया है, ऐसे इट इज नॉट प्रूव्ड, लेकिन ऐसे माना गया है कि दिस कंडीशन विच इज सोमनैम्बुलिज्म, इट कैन बी इनहेरिटेड. इनहेरिटेड का मीनिंग क्या होता है? मैम जीन से स्प्रेड इनहेरिटेड का होती है. मीनिंग, वेरी गुड, जेनेटिकली एक जीन से दूसरे जीन में, और पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग ट्रांसफर हुई है, पेरेंट्स से बच्चे को मिल गई है फ्री में. ठीक है, टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट विच इज ट्रीटमेंट. अब ट्रीटमेंट कैसे करना है टू अ चाइल्ड और टू एन एडल्ट, टू एन एल्डरली हु इज सफरिंग विद सोमनैम्बुलिज्म. यू हैव फर्स्ट विच इज मेडिकेशन, सेकेंड इज रिलैक्सेशन. मेडिकेशन कराना है कि मेडिकेशन आप करिए जो भी वट एवर इज रिक्वायर्ड अकॉर्डिंग टू द कंडीशन विच इज द साइन एंड सिम्टम्स के बेसिस में. देन रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन में मेडिटेट करने के लिए भी से इफ अ पर्सन इज एन अडल्ट ग्रुप में. देन वेकिंग द चाइल्ड और पर्सन अप्रोक्सीमेटली 15 to 20 minutes before the usual time of an event, and then keeping them awake through the time during which the episode usually occurs. आपको पहले क्या खाना है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये पॉइंट, थर्ड पॉइंट करने से पहले यू हैव टू फर्स्ट मेंटेन द स्लीप साइकिल ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन हु इज सफरिंग फ्रॉम सोमनैम्बुलिज्म. सो उसके बाद उस बच्चे को या फिर उस जो भी पर्सन इज अफेक्टेड उसको 15-20 मिनट्स पहले उठाना है जब भी उनको लगता है ये इवेंट, जब व्हेन यू विल मॉनिटर कि देयर इज एन अप्रोक्सीमेशन ऑफ टाइम कि इतने ही टाइम में वो उठ रहे हैं. फॉर इंस्टेंस 2 o'clock एट नाइट, सो उसको 2 बजे उठने से पहले देयर इज अ डिजायर्ड टाइम कि 2 बजे उठ रहे हैं, तो 1:30 को ही आप उसे उठा दो और उस टाइम पे उनको अवेक रखो जब तक वो टाइम पास ना हो जाए. फॉर इंस्टेंस इफ एपिसोड इज टेकन एट 2 o'clock and you are waking him or her at 1:15 or 1:30 or 1:45, तो उसको 2 o'clock 2:30 तक you have to keep them awake. इससे क्या होगी? What does that mean? उससे होगी कि that particular event will pass and maybe at times the particular person is this thing aware also कि इतने बार हो, इतने बजे हो गया, maybe they will sleep. Next is anticipatory awakenings. Anticipatory means in anticipation, लिखते हैं ना, in anticipation. एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेशंस हो सकता है, तो एक्सपेक्टेड अवेकनिंग मतलब पता ही है, एक्सपेक्टेड है कि इतने बजे उठेंगे, तो उनको खुद को एक्सपेक्टेड रहता है कि इतने बजे तो मैं उठूंगा ही, या फिर तो दैट इज एंटिसिपेटरी अवेकनिंग. खुद से एक्सपेक्ट कर लो कि इतने बजे तो वी कैन गेट अप और वी कैन डू सम वर्क और वी हैव टू गेट अप. देन कॉमन मिसकंसेप्शन, गलत फहमी लोगों की कि जिसको भी स्लीप वॉकिंग होती है वो लोग मरेंगे नहीं और उन्हें हार्ट अटैक नहीं आएगा अगर जग रहे हैं तो. क्यों भाई, ऐसा क्यों? इट इज अ कंप्लीट मिसकंसेप्शन कि जो स्लीप वॉकिंग करते हैं इट इज गुड फॉर हेल्थ, एंड जो लोग वो स्लीप वॉकिंग करते हैं वो कभी हार्ट अटैक से नहीं मरते क्योंकि जग रहे होते हैं वो, इसीलिए सोते सोते हमेशा के लिए नहीं सो जाते हैं. दैट इज टोटली अ मिसकंसेप्शन. हाउ टू प्रिवेंट इट, कैसे आप प्रिवेंट कर सकते हैं? लिमिट द स्ट्रेस, वेरी इंपॉर्टेंट इज लिमिट द स्ट्रेस. या तो देखो ये somnambulism is mostly, I can't say that everybody it is common like that way, but I can definitely say that it is common in people those who are having excessive stress of life or excessive stress of something, किसी चीज से related बहुत ज्यादा stress है, or else they are working too hard, या तो अपनी कैपेसिटी से कुछ ज्यादा ही काम कर रहे हैं. बिकॉज ऑफ दैट व्हाट इज हैपनिंग, द mind and the body is not cooperating. There should be a balance, isn't it? There should be a balance between the mind and the body. Both balance चलेगा simultaneously, equilibrium maintain रहेगा, definitely the body or the baby's body will be all right.
But if something is not all right, something is not into the equilibrium, not properly maintained, वो टाइम में क्या होगी, some or the other problems will arise and it will be shown in the body. Similarly, first is limits the stress. अगर stress बहुत ज़्यादा है तो उसे limit करना है पहले तो. Think nothing, do relaxation technique, exercises or meditations to remove all the stress from the body. Avoid getting too tired, as I told, बहुत ज़्यादा थकना नहीं है, and try to prevent insomnia because this can trigger a sleepwalking episode. Insomnia means loss of sleep. तो सोने ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सो ही नहीं रहे हैं, या तो खूब ज़्यादा टायर्ड होने से बचना है, देन रात में अगर नहीं सोएंगे तो इट कैन ट्रिगर स्लीप वॉकिंग एपिसोड, वो भी हो सकती है. देन अवॉइड और मिनिमाइज द स्ट्रेस, एंजाइटी एंड कॉन्फ्लिक्ट. स्ट्रेस, एंजाइटी, कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करना है, और एल्स इफ यू कांट अवॉइड, अब दैट इज नॉट इन हैंड कि आप स्ट्रेस कंट्रोल कर लो. यू कैन डाइवर्ट योर माइंड फ्रॉम थिंकिंग अबाउट सर्टेन थिंग रेपिटेडली, बट एट द सेम टाइम यू कांट at the same point, mean at some point कि बिल्कुल ही बंद कर दो. You can't at a stretch means eventually you can't stop कि एकदम से कोई चीज़ रोक दो. You can't. So you have to play certain measures. Measures कैसे हो सकते हैं? आप meditate कर सकते हैं, आप certain exercise कर सकते हैं. You can divert your mind of that particular person जो भी उसको ऐसा problem हो रहा है. तो स्लीप वॉकर्स शुड, अब स्लीप वॉकर्स को क्या क्या करना चाहिए? स्लीप इन अ बेडरूम ऑन द ग्राउंड फ्लोर इफ पॉसिबल. क्यों? जिससे कि इफ दे आर स्लीपिंग इन द बेडरूम एंड स्पेशली इन द ग्राउंड फ्लोर, तो उनके गिरने के चांसेस विल बी लिटिल लेसर, कि गिरेंगे नहीं. लॉक द डोर्स एंड विंडो, सोने से पहले विंडो और डोर लॉक कर दो सो दैट वो कहीं से गिर ना जाए, स्लीप वॉकिंग करते करते इधर उधर गिर ना जाए. सो दे कैन लीव द डोर्स एंड द विंडोज क्लोज्ड बिफोर स्लीपिंग इफ दे आर अवेयर. क्योंकि अगर फिर भी इफ दे आर समटाइम्स इफ अ पर्सन इज स्टेइंग अलोन एंड देयर आर चांसेस कि वो लोग गिर जाएं कहीं से, सो दैट इज अ डिफरेंट थिंग. सो इफ यू विल लॉक द डोर्स एंड द विंडोज एंड इफ द एपिसोड ऑल्सो हिट्स, सो नेचुरली दे विल बी इन द रूम ओनली, रूम में कहीं ना कहीं घूमकर दे विल सिट समटाइम. Keep a safe sleeping environment free from harmless or sharp objects. तो कभी भी सो रहे हैं तो दे शुड कीप अ सेफ स्लीपिंग एनवायरमेंट. आजू बाजू कोई हार्मफुल या फिर नाइफ, कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट शुड नॉट, दे शुड नॉट कीप ऑल दीज ऑब्जेक्ट्स सो दैट इन ऑर्डर टू प्रिवेंट देयर ओन सेल्फ फ्रॉम एनी सॉर्ट ऑफ हार्म और इंजरी. कंसल्ट अ स्लीप स्पेशलिस्ट इफ इंजरिंग हिम और हरसेल्फ और शोइंग वायलेंट बिहेवियर. अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन है, लाइक इफ एकदम problematic situation, if the episode is increasing day by day, in that particular time the person who is suffering from somnambulism should consult a sleep specialist so that वो अपने आप को इंजरी ना करे, या फिर उनका अगर वायलेंट बिहेवियर्स है तो वो सबसाइड हो पाए. कीप डेंजरस ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ रीच, कोई भी डेंजरस ऑब्जेक्ट्स है और अगर घर में कोई है तो दे शुड कीप द डेंजरस ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ रीच ऑफ द पर्टिकुलर चाइल्ड और पर्टिकुलर अडल्ट और whosoever. Install safety gates outside your child's room and on the top of any stairs. Safety gates होने चाहिए. Like in car you have no child lock. ऐसे ही safety gates होने चाहिए. अगर if it is a child तो child के रूम के बाहर या फिर stairs के आसपास में safety gate should be there. Conclusion with some sleep hygienic tips. फिक्स अ बेड टाइम एंड अवेकिंग टाइम. फोन में आप बेड टाइम सेव कर लो और उठने का टाइम, और उसी ही बीच में उठो. लाइक if a bedtime of a person, for instance if a person A is sleeping at right 10 o'clock at night, तो उसका बेड टाइम अलार्म आ जाएगा टन टन कि 10 बज गए आप सो जाओ. एंड अवेकनिंग अलार्म भी होती है कि इफ 10 o'clock आई एम स्लीपिंग, 6 o'clock आई हैव टू गेट अप, तो 6 o'clock मेरा अवेकिंग टाइम होगा तो आई विल गेट अप अकॉर्डिंग टू द डिजायर्ड पर्टिकुलर टाइम. अवॉइड नैपिंग ड्यूरिंग द डे. अब दिन में मत सोना, बंद कर दो. दिन में सो जाएंगे तो नेचुरल इट इज कि रात में नींद नहीं आएगा. सो अवॉइड नैपिंग ड्यूरिंग द डे. अवॉइड अल्कोहल 4 to 6 hours बिफोर द बेड टाइम. 4 to 6 hours से पहले, इफ अ पर्सन, इफ एन अडल्ट इट इज और एन एल्डरली, एंड इफ दे आर फॉन्ड ऑफ अल्कोहल or something, any other beverage, so they should avoid 4 to 6 hours से पहले. ऐसे करना है कि सोने के, if it, for instance if it is 10 o'clock, so maybe 4-5 o'clock if they are having also, so there's a gap of between 4-5 hours बेड टाइम से पहले. अवॉइड कैफीन बिफोर बेड टाइम. कॉफी पीना मना होता है, क्यों? कॉफी से फिर नींद चला जाएगा. सो कैफीन
बेड टाइम से पहले नहीं लेना है। अल्कोहल 4 to 6 आवर्स बिफोर बेड टाइम नहीं लेना है। दिन में नहीं सोना है। बेड टाइम अवेकिंग टाइम फिक्स करना है। देयर आर मोर अवॉइड हैवी स्पाइसी एंड शुगरी फूड्स, बहुत ज़्यादा हैवी फूड, बहुत ज़्यादा स्पाइसी शुगरी फूड एक साथ नहीं खाना है। मीन्स आज एकदम बिल्कुल ब्रिम तक खा लिया, खूब सारा खा लिया, फिर नींद ही नींद आ रही है, दिन भर दिन में सो गए, फिर रात में नहीं सो पा रहे। स्पाइसी, एक्स्ट्रा शुगरी फूड शुड बी अवॉइडेड। एक्सरसाइज रेगुलरली बट नॉट बिफोर बेड टाइम। बेड टाइम से पहले एक्सरसाइज नहीं करना है, बट हाँ वी कैन रेगुलरली फॉलो द एक्सरसाइज रूटीन। कीप अ कंफर्टेबल रूम टेम्परेचर। Comfortable room temperature according to the condition of the person, means for like the temperatures nowadays, means to a climate like this temperature maintenance for a child is important because आते जाती weather है। Sometimes it is sunny, like today it's sunny, sometimes it is breezy, sometimes it is windy। ऐसा weather अगर बहुत ज़्यादा हवा चल रहा है, बहुत ज़्यादा ठंडा है, बहुत ज़्यादा foggy smoggy weather है, that particular time में temperature for the baby is very mandatory। Block out all the distracting noises। कोई भी और साउंड अगर आ रहा है बाहर से, अंदर से, कहीं से भी, तो ब्लॉक करना है। हाउ? बाय क्लोजिंग द डोर्स एंड द विंडोज और कीपिंग द डोर्स एंड द विंडोज शट। डोंट टेक योर वरीज टू बेड। कोई भी प्रॉब्लम है, वेरी इंपॉर्टेंटली इफ इट इज अ चाइल्ड, दे विल कैरी अपने स्कूल कॉलेज का इन्फॉर्मेशन टू द बेड। बेड में जाके सोचते ही रहेंगे आज ऐसे हो गया, बहुत गड़बड़ है, अब तो जाना ही नहीं है स्कूल, लाइक दैट वे। इफ इट इज अ वर्किंग पर्सन, तो उसका वर्क एनवायरनमेंट वो घर तक लेके जाते हैं, एंड देन दे कंटिन्यूसली थिंक। दे शुड, in short, every person should have a positive mindset, positive attitude towards the work, whatever they are doing। तो उनको बेड तक वरीज नहीं लानी है। So this was all about somnambulism. Any doubt anybody is having, you all can please ask. Today we have seen the topic which is somnambulism. First we had seen the definition of sleep. It is a state of rest with nearly cessation of conscious life. Common name is sleepwalking, formal name sleep disorders, medical name somnambulism or noctambulism। sleepwalking क्या है? It's a disorder जहाँ पर कोई भी person या तो चलता है या फिर कोई भी अदर एक्टिविटी कर रहा है जबकि वो सो भी रहा है। किस किस को करता है? चिल्ड्रन को, मोस्टली 6 to 12 ईयर्स ऑफ एज। अडल्ट में इफ दे हैव एनी अल्कोहल हिस्ट्री। एल्डरली में डिमेंशिया की वजह से। चिल्ड्रन में क्या क्या हो सकता है? फटीग, लैक ऑफ स्लीप, एंजाइटी इन अडल्ट्स, अल्कोहल, ड्रग्स, अदर मेडिकेशन। कॉमन साइंस क्या है स्लीप वॉकिंग के? घर के बाहर, बाहर के आजू बाजू घूमेंगे, उठने में प्रॉब्लम होगा, प्रॉब्लम विल बी देयर इन engaging themselves in the routine activities। ये और भी कॉमन है जब भी दे आर टॉकिंग, लाइक टॉकिंग इज कॉमन, बट जो भी वो बात करेंगे इट विल बी सेंसलेस। डायग्नोसिस में फ्रीक्वेंटली इन आइडेंटिकल ट्विंस, जो ट्विंस होते हैं एक जैसे दिखने वाले, 10 times मोर जिनके घर में किसी को हिस्ट्री रह चुका है स्लीप वॉकिंग का, और इट कैन बी इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। बच्चों को पेरेंट्स से हो गया है तो। ट्रीटमेंट में वी हैव सीन रिलैक्सेशन टेक्निक्स, देन मेडिटेशन, मेडिकेशंस, और वेरी इंपॉर्टेंटली चाइल्ड को 15 to 20 मिनट्स पहले एपिसोड होने के, या फिर जब भी एपिसोड हो रही है उसके 14, 15 या 20 मिनट्स या हाफ एन आवर बिफोर उसको जगाते हैं, और जब तक एपिसोड का टाइम खत्म नहीं हो जाता तब तक वी कीप देम अवेक। एंटिसिपेटरी अवेकनिंग। मिसकंसेप्शन क्या है? अगर स्लीप वॉकिंग होगी तो वो कोई पर्सन विल नॉट डाई आउट ऑफ हार्ट अटैक, और दे मे नॉट हैव हार्ट अटैक ओनली। हाउ? क्योंकि वो जग रहे हैं। हाउ? कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? लिमिट स्ट्रेस, मेडिटेट करो, रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस, अवॉइड गेटिंग टू टायर्ड, खूब टायर्ड नहीं होना है बहुत ज़्यादा, जितना कैपेसिटी और जितना वर्कलोड ऑफ ए पर्सन कैन, अ पर्सन बॉडी कैन ट्राई, मीन जितना पर्सन का बॉडी झेल सकता है उतना पर्टिकुलर पर्सन को काम करना चाहिए। इंसोम्निया को प्रिवेंट करना है क्योंकि वो स्लीप वॉकिंग एपिसोड को ट्रिगर कर सकता है। अवॉइड करना है स्ट्रेस, एंजाइटी और कॉन्फ्लिक्ट्स को। अगर जो स्लीप वॉकिंग करते हैं उनको क्या क्या करना है? डेंजरस ऑब्जेक्ट अपने पास से हटाना है, बेड में अपने बेडरूम में फ्लोर पे सोना है, सो दैट दे आर नॉट हैविंग एनी fear of falling down, or else they can lock the doors and the windows। अपने आप को इंजरी से बचाने के लिए उनको स्लीप स्पेशलिस्ट से बात करनी चाहिए, सो दैट दे आर नॉट हैविंग एनी सॉर्ट ऑफ वायलेंट बिहेवियर्स। या फिर वेरी इंपॉर्टेंटली अगर चाइल्ड है तो सेफ्टी गेट्स उसको लगाने हैं जहाँ पर भी दे कैन पॉसिबली पुट।
कंक्लूजन कैसे करना है, क्या क्या टिप्स वी हैव इंक्लूडेड। बेड टाइम अवेकिंग टाइम एक लगाना है, दिन में सोने से रोकना है, 4 to 6 आवर्स बिफोर बेड टाइम से अल्कोहल अवॉइड करना है, बेड टाइम से पहले कैफीन अवॉइड करना है, हैवी स्पाइसी शुगरी फूड्स आल्सो शुड बी अवॉइडेड, एक्सरसाइज करना है बट बिफोर बेड टाइम से मीन्स नॉट बिफोर द बेड टाइम से पहले कभी नहीं करना है, रेगुलरली यू कैन डू इन द एंटायर डे एनी टाइम। रूम टेम्परेचर मेंटेन करना है, कोई भी अगर डिस्ट्रैक्टिंग साउंड और नॉइस से ज़्यादा है दे शुड बी ब्लॉक्ड, और बेड तक कोई भी चिंता परेशानी नहीं लाना है। एनी डाउट यू ऑल कैन प्लीज आस्क, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। एनी डाउट एनीबडी इज हैविंग? नो मैम। Okay, the topic was clear to everybody? Yes, ma'am. Yes, ma'am.